there is any query, please put up your query. Let any query. If there is any query, then we will resolve that one, discuss on that query, and then move further. Please your reply. I am waiting for your reply. If no, then reply no, so that I am able to start the class. Okay. If there is any query to anyone, if I am audible, please reply. Otherwise, you can reply on the chat box. Okay. So let's begin. So as you can see, this my polymorphism. Okay. So is this PPT is visible? Now it is visible. Yes, sir. Okay. Thank you, बेटा. Thank you. अनुज अनुज बोल रहे थे, कौन बोल रहा था अभी? आयुष. आयुष. ओके सॉरी, अभी आवाज पहचानने में टाइम लगेगा. सो व्हेन विल, जब भी ये क्लास स्टार्ट होगी तो 3 सवाल आपसे होंगे. क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? क्या कोई क्वेरी है? और तीसरा सवाल होगा कि आपको पीपीटी विजुअल हो रही है, नहीं हो रही है. देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर. ओके, बिकॉज वी आर ऑल डिपेंड ऑन द नेटवर्क. ओके, so before going to start the lecture, this should be confirmed. Okay, so as you can see, let allow them, क्योंकि बच्चे भी आ रहे हैं. ओके ओके, ठीक है, बच्चे आते रहेंगे, लेकिन प्लीज अपने दोस्तों से कहिए कि वो विद इन 2-3 मिनट ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर इसमें कोई लॉक करने का सिस्टम होगा तो आई विल लॉक द मीटिंग. लॉक करने के बाद क्या होगा कि कोई उसे ज्वाइन नहीं कर पाएगा. ओके, जूम में तो होता है लॉक द मीटिंग. ओके, बट ये मुझे देखना पड़ेगा कि इट इज हैपन इन गूगल मीट और नॉट. होगा, सिस्टम होगा, देखना पड़ेगा. ओके, let us start the lecture. Okay, so as you can see on the screen, on your screen, I am sharing the PPT of polymorphism. Okay, so can anybody tell me what is the polymorphism? Sir, means having many forms. Good. Neha or Aarti, who is this? Neha, sir. Neha. Okay, ठीक. So having the many form. Okay, good. So as you can see on the screen, polymorphism is of two type. Okay, one is called the compile time polymorphism, another is called the, what is written on the screen? Runtime. Runtime. Very good. Runtime. Very good. तो इससे पता चल जाएगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा. ओके, विजुअल है या नहीं. ओके, ठीक है, चलिए. One is the polymorphism. Sorry, polymorphism are two types: compile time and runtime. Okay. Compile, if you work on the compile time polymorphism, again we can divide the compile time. Again, anybody join? Okay, Harsh is joining now. Okay. So if you're talking about the compile time polymorphism, it is of also two types. One is called the function overloading, another is called the operator overloading. Clear? हाँ. So this is come under the operator overloading and this is come under the function overloading. Okay. In runtime, there is only one kind of polymorphism, that is called the virtual function. Okay. So what is a virtual function? जब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, and inheritance. Okay, so when you're talking about inheritance, there is a base class and the derived class. Can anybody explain me what are the difference between the base class and the derived class? कोई भी? What is the difference between the base class and the derived class? Let me write down in the chat box. Difference between base class and
ड्राइव क्लास? ओके, एनीबडी? हाँ या नहीं में जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आ रहा है तो तब भी ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आ रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी लोग सीख रहे हो और जो लेक्चर की शुरुआत हुई है। एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइव क्लास एंड द बेस क्लास? तो बेस क्लास जिसमें मतलब यस जो यस, पेरेंट क्लास रहती है, No, sir. मतलब डिराइव क्लास जो बेस क्लास में वो बनती है। हर हेलो, चलिए हाँ हाँ, हर सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो। जो बेस क्लास रहती है वो तो मतलब जिससे बनती है सारी क्लासेस, मतलब पेरेंट क्लास में रहती है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ड्राइव क्लास मतलब बेटा? डिराइव क्लास रहती है जो किसी भी Base class एग्जिस्टिंग is क्लास से pre-developed. बनती है, मतलब बेस क्लास से बनती है वो डिराइव बहुत बहुत क्लास। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत Base बढ़िया, बहुत class बढ़िया। is developed हाँ class and हाँ drive class दीक्षा, are from base हाँ class. दीक्षा, बोलो बोलो, उसमें हर्ष बोल रहा था, अब बोलो, फिर से बोलो, Yes, sir. बोलो फिर से बोलो, मैं सुन नहीं पाया Base था। class is pre-developed class. So base class is pre-developed class और यस, derived class is developed from base class. वेरी गुड, ठीक है, दोनों ने सही तो जो बताया। बेस क्लास होती है वो पहले से ही होती है और ड्राइव्ड क्लास बेस क्लास होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसा हर्ष ने कहा, दीक्षा ने कहा कि बेस क्लास, ड्राइव क्लास से पहले बेस क्लास होना चाहिए। जैसे बेस क्लास इज, जो मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे आपके दादा परदादा की संपत्ति, अगर वही नहीं रहेंगे तो मिलेगा क्या आपको? और फिर इट इज लाइक पेरेंट्स, ओके, तो वो होना जरूरी है। ठीक है, अगर बेस क्लास है तो ड्राइव क्लास है। तो एज यू कैन सी, इफ यूनिवर्सिटीज इज देयर, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, लिटिल बिट टेक्निकल लैंग्वेज, अभी तो हम लेमैन की तरफ बात कर रहे थे। ठीक है, लेमैन की तरफ बात इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इट इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू एंड टू अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट टू टेक सच एन एग्जाम्पल विच इज नियर अबाउट योर लाइफ, जो आप देख सकते हो, जो समझ सकते हो, ओके, उससे हम टेक्निकल चीजों से कोरिलेट कर देते हैं। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अगर यूनिवर्सिटीज नहीं रहेगी तो स्कूल और डिपार्टमेंट तो नहीं रहेंगे। अगर स्कूल नहीं रहेगा तो डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। ओके, तो बेस क्लास का होना जरूरी है। Now question is this, how to access that base class that we learn in the polymorphism, but here we are just try to understand the concept, हम concept को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। So when we're talking about polymorphism, it is of two types. There are two kind of the polymorphism. One is compile time, another is run time. In the compile time, if we write down a function, okay, multiple function in the manifold function, okay, in the base class, okay, and drive class access करना चाहता है on the basis of some parameter, so that is called overloading. Similarly ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओके, बट वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है कि बेस क्लास के पास भी अपना फंक्शन है उसी नाम का और ड्राइव क्लास के पास भी अपना फंक्शन है उसी नाम का। इतना समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो तो मैं आगे बढ़ूं, यस या नो में। नहीं समझ में आया? जिसको समझ में आया वो ये समझा सकता है मैंने क्या बोला, तो मैं कंफर्म कर लूंगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूं। अभिषेक, आर यू ट्राइंग? हाँ, कुछ समझ में आया जो मैंने बोला अभी? अच्छा, किसको समझ में आया जो बोला मैंने अभी? चलिए मैं फिर से बोल दे रहा, ठीक है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। देखिए, अगर मैं एग्जांपल ले सकूं तो मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं जिससे आपको थोड़ा और से चीजें क्लियर हो जाएं। लेट टॉक अबाउट दी, ओके, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल लेने के लिए मेरे को कुछ साइट पे जाना पड़ता है जिससे मैं एग्जांपल प्रॉपर तरीके से ले सकूं। कंट्रोल सी, क्योंकि लिखने में बड़ा टाइम लगेगा। न्यू स्लाइड, स्लाइड इज विजुअल टू एवरीवन। देयर इज ए वन क्लास कार, ओके, एंड देयर इज ए वन फंक्शन दैट इज, मान लो कोई फंक्शन है, ओके, उसका नाम ही फंक्शन है FUNC इंट एक्स, ओके,
यू कैन टेक इट इज ए सी प्लस प्लस कोडिंग। अभी आपको सी प्लस प्लस कोडिंग में नहीं जाना है, क्या सी आउट का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इस पे नहीं जाना है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, तो यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम ये है और ये भी फंक्शन का नाम है, दोनों फंक्शन के नाम सेम है, लेकिन दोनों का जो पैरामीटर है, इफ यू कैन सी द कर्सर, बोथ आर द डिफरेंट। ओके, सो एंड नेक्स्ट इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर इज अनदर फंक्शन, दिस this and this all having the same name but their parameter are different। ये सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। Yes, sir। अभी ये बिल्कुल मत सोचिए इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा है, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास हो गई जिसका नाम हो गया कार। ओके, अब हम मेन पे चले आते हैं। यहां पे देखिए ये सेमीकोलन दिखाई दे रहा है सबको, जहां पे कर्सर है आफ्टर कर्ली ब्रेसेस। Yes, sir। Yes, sir। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब इट इज एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम। क्लास का नाम और यहाँ पे नाम मैच करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। एक कार में एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट 1 लिखा है, लेट हियर वी टेक दी टाटा। ओके, तो हियर वी कॉल, हाउ वी कॉल, मैंने आपको बहुत पहले हल्का सा बताया था, व्हेन वी कॉल दी फंक्शन विथ सम, यहां पे आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट और फंक्शन के बीच में डॉट दिखाई दे रहा है। Yes, sir। Yes, sir। हाँ, दिस डॉट इज कॉल्ड द एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, तो यहां पे मैंने एक पैरामीटर दिया जो इंट है। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देता हूं क्योंकि मैंने ऊपर चेंज कर दिया था, तो मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा और यहां भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, टाटा। सो रिटर्न 0 किस लिए लिखा जाता है, ये सी का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को। वाई दिस प्रोग्रामर राइट डाउन दी, मैं तो नहीं लिखा, खैर जिसने भी लिखा है, वाई एनी प्रोग्रामर राइट डाउन रिटर्न 0 हियर at the last of the function, anybody can explain me, this is the concept of C। वो फंक्शन का डाटा टाइप इंटीजर है। इधर फंक्शन रिपीट ना हो। नहीं, क्योंकि वो फंक्शन का डेटा टाइप इंटीजर है, रिटर्न इंटीजर है। ये कौन था, अनुज था, कौन था यार जिसने पहले जवाब दिया? हाँ, अनुज, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है बेटा, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय ना इस गूगल मीट की स्क्रीन नहीं देख सकता। गूगल मीट की स्क्रीन देखने में क्या होता है, जब भी आप बोलते हो तो आपकी आवाज फ्लक्चुएट होती है, तो वो सिंबल बन के आ जाता है कौन बोल रहा है, क्योंकि इस समय मैं पीपीटी पे हूं तो मैं वहां जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे नाम पूछता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंट है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन विल रिटर्न सम वैल्यू। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू? इंट। ओके, तो मैंने इसलिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया। अगर यहाँ पे वाइड लिखता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, यस, अरे this is the concept of function overloading। Let me in the bold, this is the concept of function overloading। okay, this is the concept of function overloading, मतलब ये है। तो ये what is meaning compile time, meaning of compile time before the execution। okay, it will be decided at the time of compile time कि अगर ये पैरामीटर आएंगे तो हमें किस किस फंक्शन को कॉल करना है। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग? एनीबडी हैव एनी क्वेरी? हाँ या नहीं में जवाब दो भाई, तो मैं समझ पाऊं। एनी क्वेरी? हेलो, एनी क्वेरी? नो? ओके, ठीक है। दिस इज कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। इस कॉन्सेप्ट को हम किसी प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए C++ हम अलग से सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड C++ में था। ठीक है,
तो अगर आपने पहला एग्जांपल मेरा देखा हो तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया था, दिस इज एग्जांपल, ओके। तो स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर? यहाँ पे क्लास लिखा हुआ, यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शन है। पब्लिक का क्या मतलब होता है अभी आप छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ेंगे जब इनहेरिटेंस डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट लिखा जाता है, लेकिन कब लिखा जाता है ये पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या आता है, मेन आता है, और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट आता है। और हम उस आइदर वी कॉल, इफ यू लुक हियर, देयर इज डॉट इन बिटवीन टाटा एंड द नेम। टाटा और नाम के बीच में आपको डॉट दिखाई दे रहा है। दिस लेट मी F5. This dot is called the, let me ball pen point. अगर आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है, this dot is called the Specified. वेरी गुड, Access स्पेसिफायर। specified. हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर। मैंने आपको इससे पहले इसके बारे में हल्का फुल्का बताया था, ठीक है। एक्सेस की स्पेलिंग यही होती है ना, हाँ? Yes, sir. ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर, ओके। सो आइदर वी कॉल द what is name here? Name is a variable, okay. So by some object, देखिए यहाँ आपके सी प्लस कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। जब मैं एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग पे आऊंगा तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता रहेगा कि कुछ इस तरीके से प्रोग्राम को लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर आपको वहां वरी करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत कैच कर लोगे, ओके ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। So when there is an object, it is an object. It is Tata is a what? Tata is an Object. अरे ऑब्जेक्ट, पर लिखने में दिक्कत होता है माउस से। एंड व्हाट इज नेम? नेम इज एन वेरिएबल, हाँ, Variable. या डेटा कह लीजिए, क्योंकि कहाँ पे ये इस जगह पे वेरिएबल है ना। इट इज इनबिल्ट टाइप ऑफ वेरिएबल, okay. It is similarly structure. How you write down the structure? You write down the struct. struct का कैसे फंक्शन लिखते हो, फिर उसका नाम लिखते हो या नाम बाद में लिखते हो। यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे इनबिल्ट डेटा टाइप होता है, और यहाँ पे आप सेमीकोलन या कुछ लगाते हो, या आगे फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम होता है, जैसे कार, ओके। एंड हियर इट इज कार, या स्ट्रक्ट कार एंड वेरिएबल नेम, या तो यहां लिखते हो या तो यहां लिखते हो स्ट्रक्चर में, ऐसे कुछ होता है ना। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप इंट एक्स लिख देते हो। सो स्ट्रक्चर वेरिएबल हियर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड। सिमिलरली दिस ऑब्जेक्ट इज अ यूजर डिफाइंड। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैंने कल बताया था? कोई बता सकता है? कल मैंने ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्या बताया था? ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी, तो है, सबको पता है क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन C++ के या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसर्न में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? एनीबडी? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ व्हाट? Instance of गुड, class. इंस्टेंस ऑफ क्लास, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास? अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देख लें तो हम उसके पूरे क्लास के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो that is called an instance of class, okay. तो अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग के बच्चे को देख लें तो हम बता सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग छोटा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, या मेल होगा, फीमेल होगा, कुछ भी होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, क्लियर? काला होगा, गोरा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? क्योंकि आप पूरी दुनिया में देख लीजिए ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसका हंसना, रोना, गाना, खुश होना, चाहे वो इस पूरे अर्थ पे कहीं भी रहता हो या मून पे भी जाके रहे या कल को मंगल पे जाके रहे, उसका बिहेवियर एक जैसा होगा। इज इट क्लियर? सो Yes, sir. बाय अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की स्टडी कर लें तो हम पूरे क्लास की स्टडी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द डेफिनेशन इज हियर, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्योंकि एक क्लास में तो बहुत ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की क्लास की बात करें, ना जाने पूरी दुनिया में मिलियन बिलियन पता नहीं कितने ह्यूमन बीइंग हैं। सबको समझ में आ रहा है? और सबके डेटा अलग अलग हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन इज ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ओके। जब मैं बीटेक में पढ़ रहा था
तो मेरे को इंस्टेंस का मतलब नहीं समझ में आया था, मैं सही बताऊं। ये टीचर क्या बोल के चला गया इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, क्योंकि टीचर ने इतना मैच तो समझाया भी नहीं था, ठीक है। तो एक आईआईटी कानपुर से मैडम आती थी पढ़ाने हमें, तो नहीं समझ में आया, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को एक आध साल बाद जाके क्लियर हुआ कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ओके, जब बीटेक भी समझ में आ गया था कि भाई इंस्टेंस ऑफ ए क्लास का क्या मतलब होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो इफ यू, अच्छा आज का क्या टॉपिक था? आज का टॉपिक था डायनेमिक, जो हमने कल डिस्कस किया था, मैसेज पासिंग। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक एंड मैसेज पासिंग, हमें पॉलीमॉर्फिज्म को समझना ज्यादा जरूरी था। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ठीक है। सो दिस, यस, एनी क्वेरी? सर ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? आ रहे अभी तो फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा है। फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आया? यस सर। कौन, किसका सवाल था भाई? कौन बोला? कोई बताओ तो भाई, कौन बोला था? अभिषेक। काटूंगा नहीं ना, नंबर काटू। हाँ, अभिषेक। अभिषेक, फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आया? यस सर। समझाओ जरा सा 2 मिनट में। सर फंक्शन ओवरलोडिंग वो होता है जैसे किसी फंक्शन का नेम सेम है पर उसके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इट इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू फंक्शन ओवरलोडिंग। जो मैसेज पासिंग और डायनेमिक बाइंडिंग की बात कर रहा हूं वो वर्चुअल फंक्शन में होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर मुझे आपको डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग तो खैर पूरे प्रोग्राम में होता है, लेकिन जो डायनेमिक बाइंडिंग होता है वो होता है वर्चुअल फंक्शन में। तो अगर मेरे को डायनेमिक बाइंडिंग समझाना होगा तो मैं आपको सबसे पहले वर्चुअल फंक्शन समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि वर्चुअल फंक्शन समझाना था तो उससे पहले मेरे आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझाना पड़ेगा और ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब बारी आती है किसकी? ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। चलिए, घबराइए नहीं, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिसगार्ड, ऐसा नहीं होगा कि मैं भागता हूं चला जाऊं, ठीक है। न्यू स्लाइड। ओके, ये प्रोग्राम पूरा दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Is it visible to everyone? Here Yes, sir. we are talking about. Okay, very good. Okay, thank you, beta. So let me write down here. It is an operator overloading. Here we are going to take the example of operator overloading. एक मिनट पानी पी लो यार, बोलते बोलते ना गला सूख गया। Okay, now what you can see here, there is a class, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, कहाँ चला गया यार? ओके, हाँ, ठीक है। हम्म, 16 ही सही, 16 भी नहीं सही। ओके, चलिए, सही करने के चक्कर में ना थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। कैन यू सी द क्लास नेम? व्हाट इज द क्लास नेम हियर? Complex. कॉम्प्लेक्स। ओके, इसमें एक डेटा सेट है जो प्राइवेट है। ये प्राइवेट पब्लिक कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए डेटा सेट है, ठीक है। अभी प्राइवेट पब्लिक भूल जाइए, ठीक है। समझ में आ रहा है डेटा क्या है? रियल एंड इमेजिनरी नंबर, बोथ आर इन टाइप। पब्लिक में एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? देयर इज एन इंटीजर, 2 इंटीजर, एंड फर्स्ट रियल इज इक्वल टू आर एंड सेकेंड इमेजिनरी इज इक्वल टू आई, ठीक है, क्लियर। देन देयर इज एन अनदर फंक्शन। ओके, हम अब ऑपरेटर में कैसे लिखते हैं? अगर हमें कोई ऑपरेटर यूज करना तो देयर इज ए कीवर्ड, वी यूज दी ऑपरेटर। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कीवर्ड है और यहाँ पे ऑपरेटर किसका ऑपरेटर है? किसका ऑपरेटर है? प्लस का, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अब ये कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स इस क्लास
ठीक है, और यहां पे एक पॉइंटर यूज किया गया है, वो कैसा पॉइंटर है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, ठीक है, क्लियर, कांस्टेंट टाइप का है रिटर्न, ठीक है, एंड हियर इज एन, जब हम इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। देयर इज व्हाट इज रिटन हियर, कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के पास सामने कुछ वैल्यू लिखी है तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, यहां भी क्रिएट कर सकते हो, यहां भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इट इज लाइक ए टेम्परेरी काइंड ऑफ थिंग वेयर इट एड सम वैल्यू, ओके, हियर व्हाट वी डू, दिस इज एन ऑब्जेक्ट 10 5 एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, ओके, क्लियर, दो ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर R की वैल्यू और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 और 5। इट इज लाइक दिस। अगर मैं इसको आपको एक तरीके से दिखाऊं, अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, जस्ट अ मिनट, अब सब कॉपी सब पे क्लिक करना पड़ेगा क्या, चलिए कुछ कुछ कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैसेज पासिंग भी क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो छोटा कर देते हैं। देखिए एक क्लास है, ये पीछे सबको दिखाई दे रहा है, एक क्लास है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स है और यहां पे दो ऑब्जेक्ट है C1 एंड C2, ओके, बड़ा ही करके समझाना पड़ेगा, ओके, C1 एंड C2, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है, द ऑब्जेक्ट इज कंट्रोल C, एडिट, कंट्रोल V, कंट्रोल C, एडिट, कंट्रोल V, ओके। देयर इज फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन नेम इज हियर, फंक्शन नेम इज, जो भी इसके अंदर है, ये दोनों फंक्शन है, ये इसे कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्या कहते हैं, जब भी हम इसको इनिशियलाइज करते हैं C1 को, ओके, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है, तो अभी भूल जाइए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब भी यहाँ 10 और 5 होगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा इस प्रोग्राम में, क्लियर। जैसे ये फंक्शन इन्वोक होगा तो यहां C1 के केस में क्या होगा, C1 के केस में ये R अपने आप कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल ही समझिए, ठीक है। C1 के केस में रियल वैल्यू इज 10 एंड इमेजिनरी वैल्यू इज 5, ये अपने आप जैसे ये कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि हमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, ओके। सो जब भी हम कोई पैरामीटर पास करते हैं, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, इन द मेन, ओके, द सम वैल्यू इज असाइन, क्लियर। तो अगर हमने यहां कोई पैरामीटर पास कर दिया तो दिस वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट असाइन टू दिस। सिमिलरली हियर हमने एक और यहां पे अगर आप देखें तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सो हियर द वैल्यू ऑफ रियल इज इक्वल टू 2, यहां पे स्मॉल r है, एंड द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी इज इक्वल टू 4, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो यहां पे डेटा हाइट हो गया, C1 का डेटा हाइट अलग हो गया, C2 का डेटा अलग हो गया, ओके, क्लियर। बोथ नाउ here you can see there is a complex C3 is equal to C1 plus C2, okay. So here we are talking about the object operator. Here you can see it is adding the this function is used to add the complex of two number, okay. So such kind of where the we can add, because operator is used to add the numerical value also, okay. बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे आके कुछ लिख दूं ऐसा, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, मैं यहां पे आके int a b, ओके, a b c, ओके, so here if I write c is equal to a plus b, ये दिखाई दे रहा है, ओके, c is equal to, sorry, c equal to, yes, c should be small, okay. Now look,
सो यहां पे एक प्रोग्राम है कि अगर हमें दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़े, ओके, सो हाउ कैन यू add the two objects? Here you can, here let a is equal to 5 and b is equal to 6. Okay, now you can see here one is using for the number and another plus is using for the adding the two complex number. So for that, and यहां पे क्या ऐड हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, यहां पे क्या ऐड हो रहा है, दो नंबर ऐड हो रहे हैं। ये तो इनबिल्ट ऑपरेटर, ये तो ऐड करके आपको दे देगा। लेकिन अगर हमें इसके अलावा कुछ और काम करना हो तो उसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इतना समझ में आ रहा है? कोई सवाल है तो पूछिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ओवरलोडिंग, दिस प्लस फंक्शन इज डिफरेंट बट वी कैन यूज दैट सेम ऑपरेटर इन ए सम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ओनली। उस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए वी राइट सम फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। एनी क्वेरी? प्लीज पुट अप योर क्वेरी, तो मैं फिर आगे बढ़ू। अनुज, अभिषेक, हर्ष, नो सर। ठीक है, क्लियर हुआ? हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ना पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपका यूनिट 5 में आएगा बेटा। यूनिट 5 में ना हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब आते हैं वर्चुअल फंक्शन में, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन को समझाने के लिए मुझे ये दोनों को समझाना जरूरी था। तो वर्चुअल फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो इंटरव्यू का सबसे पेट क्वेश्चन होता है कि अगर आपने बोला है कि C++ और oops इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो आपको 2-3 सवाल फटाफट पूछेंगे। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ oops, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ oops। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताना शुरू करोगे, सर ऑब्जेक्ट ये होता है, क्लास ये होता है, एब्स्ट्रैक्ट ये होता है, इनहेरिटेंस ये होता है, पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है, डायनामिक बाइंडिंग ये होती है, मैसेज पासिंग ये होती है। तो उनका अगला सवाल, जैसे आप पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे तो हो सकता है आपको बीच में रोक दें। अच्छा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग? ओके, अब ओवरलोडिंग, इसको इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में दो कॉन्सेप्ट आ जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसा आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड operator overloading. Okay, now move on to the new slide. Here write runtime polymorphism. Okay, yeah, runtime polymorphism. Okay, जिसकी हम बात करते हैं वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। किसने पूछा था सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझा दीजिए? अभिषेक आपने पूछा था? किसने पूछा था, भूल गया। हेलो, यस सर। अभिषेक आपने पूछा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग? यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। देखो, एक होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आइडिया, ठीक है। आप भी जब कोई काम करने जाते होगे तो आप कोई काम करने से पहले किसी आइडिया को सोचते हो, ये काम होगा कैसे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है, वो पहले आइडिया सोचता है, उसको इंप्लीमेंट, उसके एल्गोरिथम अपने दिमाग में तैयार करता है, फिर उसको रियल रूप में डालता है, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कह रहा है तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए आया है दुनिया में। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो प्रोग्रामिंग भी ऐसे ही है। वर्चुअल फंक्शन, ओके, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन के प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हम फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करते हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही होता है, उसको शायद वर्चुअल फंक्शन कह लीजिए, फंक्शन ओवरराइडिंग कह लीजिए, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने ले आ रहा हूं। First we write down the definition. You call the virtual function or it call the function overriding. Okay. अब what is the definition? पहले definition सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, प्रोग्राम तो खैर अलग अभी है। अब तो फंक्शन ओवरराइडिंग ऑन द अदर एंड अकर व्हेन द ड्राइव्ड क्लास, देखिए यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास और बेस क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक इनहेरिटेंस की बात नहीं किए थे हम। ओके,
So on the other hand, it occur when derived class, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था what is the derived class, what is the base class, okay, has definition of one of the member function of the base class, जिसकी एक डेफिनेशन ड्राइव क्लास के अंदर बेस क्लास की हो, ओके, द बेस फंक्शन इज कॉल्ड द ओवररिडन, ओके, तो उस बेस फंक्शन को कहा जाता है ओवरराइड कर दिए, ठीक है। व्हाट इज ओवरलोडिंग, ये जब ओवरलोडिंग आ रहा है तो उसकी डेफिनेशन भी आपको दे ही देते हैं साथ ही साथ, लेकिन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट यहां यूज होता है, तो हम इसको इसके बाद लिखते हैं न्यू स्लाइड पे, जिससे मैं जो आपको स्लाइड दूं, ये मैं आपको पीपीटी ये हैंड ओवर कर दूंगा, एक बार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं पढ़ा लूं उप्स के, तो फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। तो जब मैं आपका ये डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग आई विल कंप्लीट इट, देन आई विल हैंड ओवर दिस पीपीटी टू यू इन द पीडीएफ फॉर्म, ओके, कि आपके, अच्छा, और मैं यूट्यूब पे, मैं टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मैं यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा, ठीक है, जैसे डालता हूँ, ओके। ओवरलोडिंग, so what is meaning of overloading? It is a very pet question in the interview. What is the difference between overriding, overloading? जब आप इसको बता लेते हो और मान लो इंटरव्यूअर को कुछ शक होता है कि ये बंदा लगता है क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो आपसे प्रोग्राम लिख के ये प्रोटोटाइप लिख के बताता है, दिस इज अ प्रोटोटाइप, बेसिकली छोटा सा एक प्रोग्राम लिख दो, तो आपको इससे मतलब नहीं इसके अंदर क्या है, वो प्रोग्राम इससे लिखवाता है, बस आप ये बता दीजिए कि सर यह क्लास होगा ये, बस ये और ये, इसके अंदर भले कुछ ना लिखिए, ये और ये, मतलब समझ जाएगा, अच्छा ठीक है बच्चे को आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। सो ओवरलोडेड इज हियर राइट, बेसिकली कंट्रोल सी, देखिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और आपको ये भी बता रहा हूं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसीलिए आपके जितने भी दोस्त तैयार हैं उनसे बोलिए, कैपिटल ही हुआ ना, हाँ, उनसे बोलिए कि इस क्लास को जरूर अटेंड करें, अगर वो कुछ इस क्लास का बेनिफिट लेना चाहते हैं इन द इंटरव्यू, ओके, और कुछ प्रोग्रामिंग डिजाइन करना चाहते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि इस क्लास की कोई जरूरत भी है उनको, ओके, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए, क्योंकि अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद मैं आपको इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, फिर मैं आपसे बोलूंगा हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, ओवरलोडिंग पढ़ा था, ओवरराइडिंग पढ़ा था, चलिए इसको यूज करते हैं। तो जितना डिटेल में फर्स्ट टाइम बताता हूँ उतना डिटेल में नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम बताता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि ये मैंने बता दिया है, ठीक है, उसके बाद कोई बच्चा ही पूछता है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ उसको, इतने एग्जाम्पल भी नहीं लेता। चलिए ओवरलोडेड पढ़ते हैं, तो ओवरलोडेड या ओवरराइडिंग कुछ भी कह लीजिए, ओवरलोडिंग कह लीजिए, ओके, सॉरी ओवरलोडिंग कह लीजिए, ओवरलोडेड कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। So when there are multiple function with the same name but different parameter, this function are said to be overloaded. Okay. So यहाँ पे आप overloaded concept समझ, there are multiple function and with the same name. So this is a overloaded. Similarly, here operator overloading, there is a this plus and this plus. Okay. तो इनका प्लस ऑपरेटर तो एक ही है, ओके, चाहे वो इनबिल्ट हो चाहे यूजर डिफाइंड हो। Here we write the user defined, this is the keyword we use, okay, when we design some special kind of operator कि इसका बिहेवियर अलग तरीके से काम करे इसका प्लस का, तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स समझ लीजिए। तो यहाँ पे जब हम दो ऑब्जेक्ट को प्लस कर रहे हैं तो अलग रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जब दो इंटीजर को प्लस कर रहे हैं तो इनबिल्ट है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नाउ concept come under the this overridden. Now move on to the some example, तो जो है डेफिनेशन लिखी उसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। चलिए अब हम प्रोग्राम पे समझ, देखिए आज मैं डायनेमिक बाइंडिंग शुरू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं इसे खत्म कर लूंगा तो मेरे लिए इजी होगा पढ़ाना डायनेमिक बाइंडिंग, क्योंकि डायनेमिक बाइंडिंग में बता के चला जाना फोन में आएगा नहीं किसी को ऐसे ही। नहीं मैं भी कहूँ ये तो फंक्शन ओवरलोडेड है, ये वो राइटिंग थोड़ी ना हो रहा है, ना बेस क्लास ना ड्राइव क्लास, सॉरी ये तो डिले हो जाता है यार। बताओ इतनी मेहनत किया उस चीज पे जो चीज पहले मैं कर चुका हूं। डिलीट मारो इसको।
चलिए ये ज्यादा समझ में आएगा। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या लिखा है? राइट और बढ़ा दें। ये दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है बच्चों? स्क्रीन पे प्रोग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। असल में पहला जो पहले मैंने प्रोग्राम लिया था ना, वो फंक्शन ओवरलोडिंग का था। तो जब मैं समझाने को गया तब मेरा दिमाग ठनका गया, ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये तो राइडिंग है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बेस क्लास है ना ड्राइव क्लास है। तो ओवर राइडिंग में बेस क्लास और ड्राइव क्लास आएगा। अब चीजों को समझिए। ठीक है, होता क्या है कि ये एक बेस क्लास है, तो यहाँ पे बेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस ठीक है, तो इसके अंदर पब्लिक है, पब्लिक के अंदर पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, ये बात की बात है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिया गया है प्रिंट, और यहाँ पे एक फंक्शन लिया गया है शो। ठीक है, जब भी हम ड्राइव क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्लास है, क्लास यही वाला क्लास है, सेम क्लास है। क्लास के आगे क्लास का नाम लिखा है। इस बड़ी बड़ी क्लास का क्या नाम है? बेस। ओके, यहां पे आप लिख सकते हैं कार। कार एक क्लास हो गई, PAR। अब कार भी कई टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ, मुझे सर्च करने दीजिए, टाइप्स ऑफ कार क्या क्या होती है? सेडान, हैचबैक। ठीक है, ए सेडान हैज ए 4 डोर एंड ट्रेडिशनल ट्रक। ओके, सेडान, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। चलो, तो यहां पे चलिए आ जाइए पीपीटी में। तो यहां पे हमने कार लिया और यहां पे हमने एक और क्लास बनाया। उस कार का क्या नाम रखा? सेडान। सेडान का मतलब क्या होता है? एक कार है जिसके पीछे हल्का सा कुछ ट्रक टाइप का निकला हुआ है। ठीक है, उस टाइप की कार को सेडान कार बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक के बाद क्या लिख देंगे? कार। क्या कैपिटल है? यहाँ दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। मैं इनहेरिटेंस में आ गया हूं। ठीक है, जो फंक्शन ओवरराइडिंग होगा वो इनहेरिटेंस में होगा, और जो फंक्शन ओवरलोडिंग होगा वो पॉलीमॉर्फिज्म में होगा। दिस इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो देखिए, ये क्लास कार है। ये अभी तक ये सिंपल यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ये क्लास खत्म हो गई। कार भी कई टाइप की होती है अपने डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, वो आप नेट पे जाके देख लीजिएगा, मुझे को भी नहीं पता था। ठीक है, इतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन सेडान एक कार का टाइप है। ये कि एक कार होता है जिसके पीछे हल्का सा ट्रक रूमा निकला होता है, या हल्का सामान रखने के लिए स्पेस होता है। ठीक है, तो अब ये यहां पे क्या हो गया? दिस इज दी कार इजी, पेन ले लू मैं। हियर कार, दिस वन, अभी तक मैंने आपको इनहेरिटेंस का एग्जांपल नहीं दिया था। दिस वन इज कॉल्ड दी, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। दिस इज द बेस क्लास। ये क्या हो गया? बेस क्लास हो गया। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? यहां पे ये क्लास है जिसका नाम सेडान है। ठीक है, और ये किसको इनहेरिट कर रहा है? इनहेरिट करने में हम ये ऑपरेटर लगाते हैं, डबल स्पेसिफायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा ड्राइव क्लास। ये हो गया ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? ये ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास को जब भी ड्राइव क्लास बेस क्लास को एक्सेप्ट करता है तो कौन सा ऑपरेटर लगाता है? डबल ऑपरेटर, 2 बिंदी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये जो है यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब इसके सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। अब डिटेल में पढ़ेंगे पब्लिक कई कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, उसको क्या मतलब होता है, अभी उसके मत जाइए। तो यहाँ पे एक क्लास का नाम लिखा है जो नई क्लास है, यहाँ पे हमने इनहेरिट किया। सो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 फंक्शन है, एक प्रिंट फंक्शन है और एक शो फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं ड्राइव क्लास में। ठीक है, ड्राइव क्लास में भी पब्लिक है, यहां भी प्रिंट है और यहां भी शो है। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, बेस क्लास में भी वही फंक्शन का नाम है और ड्राइव क्लास में भी वही फंक्शन का नाम है। ठीक है, दोनों में सेम फंक्शन है। क्लियर? यस सर। ओके, अब यहां पे वर्चुअल फंक्शन कॉन्सेप्ट आता है। ओके,
अच्छा, यहाँ पे बेस की जगह में यहाँ पे कार करना था मेरे को, मैं नाम भी चेंज कर दूं, कीप। यहाँ पे क्योंकि मैंने नाम ऊपर चेंज किया तो यहाँ भी चेंज कर दूं। ये बेस की जगह क्या हो जाएगा, कार, CAR, और ड्राइव की जगह क्या हो जाएगा, सेडन। कैपिटल में है SEDAN, सेडन। ठीक है, ND वर्चुअल फंक्शन, ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, मैं पेन ले लूं अपनी। Here we talk about the concept of overriding, okay? क्योंकि बेस क्लास में भी सेम नेम के फंक्शन है और ड्राइव क्लास में भी सेम नेम के फंक्शन है, तो अगर मैं लिखता हूं किस तरीके से, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है? अगर मैं लिखता हूं, अब यहां पे हम जब वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं ना, तो हम ऐसे एरो लगाते हैं। जब मैं ये लिखूंगा, मान लीजिए डी डॉट, डॉट स्पेसिफायर है प्रिंट, ओके, PRINT, आप लोग बताइएगा, ये फंक्शन है, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, यहां पे सेडन क्या है, डी का मतलब ड्राइव क्लास, और दिस इज अ फंक्शन ऑपरेटर, इसका मतलब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं प्रिंट। प्रिंट यहां पे फंक्शन दिखाई दे रहा है सबको, यस या नो में जवाब दीजिए। यस सर। और यहां भी प्रिंट दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब मैं इस मेन प्रोग्राम के अंदर ये लाइन लिखूंगा किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए, मेंबर फंक्शन जिसे कहते हैं, तो ये वाला प्रिंट कॉल होगा या ये वाला प्रिंट कॉल होगा? कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। और ये रन टाइम पे डिसाइड होता है, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। रन टाइम का मतलब जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तो वहां पे हम बात करते हैं बाइंडिंग की। यहां पे बाइंडेड टर्म है एट रन टाइम। तो जब हम रन टाइम पे ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किस फंक्शन से जुड़ेगा, ये जब रन टाइम पे डिसाइड होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड दी डायनेमिक। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक का मतलब एट दी रन टाइम। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, हेलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम पे कौन सी क्लास, ये ऑब्जेक्ट किस फंक्शन को लेगा, ठीक है। अगर यहां पे फंक्शन का नाम अलग होता, यहां पे अलग होता, तो कोई झंझट ही नहीं होता, ठीक है। इतना क्लियर है? और इसी डायनेमिक बाइंडिंग को हम कहते हैं दूसरी भाषा में लेट बाइंडिंग। लेट डायनेमिक बाइंडिंग कह लीजिए, या लेट BINDING। आगे आप लिख लीजिएगा कि स्पेस है नहीं इतना, चलो मैं लिख ही देता हूं जितना स्पेस है। ये क्लियर हुआ? डायनेमिक बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग आर द सेम थिंग। अब हम पीछे जाएं, मैं आपको कंपाइल टाइम समझाता हूं। देखिए, ओवरलोडिंग में आते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम को कहते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन, ओके। हियर द कॉन्सेप्ट इज कम स्टैटिक बाइंडिंग। जब कंपाइल टाइम में ही तय हो जाता है कि भैया ये होगा तो किस फंक्शन को कॉल करना है, ओके। स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग के अंदर एग्जीक्यूशन से पहले फंक्शन को पता होता है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मुझे किस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है, एट ए रन टाइम में डिसाइड करना होता है कि मुझे किस फंक्शन को कॉल करना है। तो जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग या वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं, तो देयर कॉन्सेप्ट इज कम अंडर द डायनेमिक बाइंडिंग, or we call the late binding. Here we call static binding, or we call the, where is my this, हाँ ये रहा, early binding, okay. Is this clear? Static binding and early binding concept, ये early binding और static binding concept clear हुआ? यस सर। ठीक है, ओके।
अब देखिए जो ये बच्चा लेक्चर नहीं अटेंड करेगा वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेक्चर अटेंड करके समझा जाता है। हमारे साथ बीटेक में कई बच्चे थे जो नहीं करते थे, वो काफी आगे निकले, ठीक है। लेकिन लेक्चर अटेंड करने से क्या होता है ना कि एक बूस्टअप टाइप काइंड ऑफ थिंग मिल जाता है। एक ये पता चलता है कि मुझे इतना पढ़ना है, और जब वो बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको जल्दी समझ में आती हैं चीजें, अगर अटेंटिव वे में लेक्चर अटेंड करें तो। ध्यान कहीं और है तो अलग बात है, तो करें ना करें एक ही चीज है। चलिए, okay, so here how this where the name of the base class and the drive class are same, तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या रन टाइम। ओके, इन रन टाइम ऑन द अदर हैंड अकर, अब इसको आप डेफिनेशन समझ में आएगा, प्रोग्राम आपने देख लिया। ड्राइव क्लास हैज द डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द मेंबर फंक्शन, ओके, ऑफ द बेस क्लास। जैसा बेस क्लास का, दिस इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मेंबर फंक्शन। जब ड्राइव क्लास का मेंबर फंक्शन बेस क्लास के नाम की तरह होता है, भले दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन तब दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ए फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, अब आपके लिए सवाल है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा यूनिट 5 में। तब तक आपके पास काफी समय है। अगर कोई जिज्ञासु बच्चा है जिसको जानने की इच्छा है कि क्या है, वो खुद पढ़े और मैं यूनिट 5 में जवाब दूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हेलो, एनी जवाब दो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं, इंप्लीमेंटेशन बात हटा दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया ना, ठीक है। और ये बाइंडिंग समझ में आया, डायनेमिक बाइंडिंग? यस सर। ठीक है, तो डायनेमिक बाइंडिंग, जरा मैं बाहर निकल जाऊं, डिसगार्ड कर दूं चीजों को, ठीक है। तो डायनेमिक, तो आज का मेरा टॉपिक था डायनेमिक बाइंडिंग, लेकिन डायनेमिक बाइंडिंग को समझाने के लिए उतना समझाना मेरे को बहुत जरूरी था, ठीक है। और आपका 40 टाइम भी हो गया है, तो डायनेमिक बाइंडिंग में हल्का फुल्का हम 5 मिनट का पढ़ेंगे, क्योंकि डायनेमिक बाइंडिंग मैंने पूरा समझा दिया है। मैसेज पासिंग हम हल्का सा पढ़ेंगे, वो भी मैंने पूरा समझा दिया है, क्योंकि टाइम हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। अगर मुझे कम से कम 10-15 मिनट और चाहिए इसको, और मतलब थोड़ा वो समझाने के लिए, ज्यादा नहीं बचा है। मैसेज पासिंग और डायनेमिक बाइंडिंग 10 मिनट का और है, दोनों मिला के। चलिए क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन। तो मैं अटेंडेंस ले लूं, स्टॉप शेयरिंग दिस one and move on to my Google Meet. Okay, so ready for the attendance. Today is 29/8. So Aarti, Present, sir. okay, good. Abhishek, Present, sir. good. Aditya, प्रेजेंट सर। good. Aman, Present, sir. ये मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाया था, एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, डोंट नो सर। फिर ये क्या लिखा है आकाश में? माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, नो डिफरेंस। अच्छा, नॉट बैड, क्या क्या लिखते रहते हो भैया? यस सर, यस। ठीक है, चलो अपना कोई सवाल है तो पूछो भाई। नमन, चलो उससे बाद में। अंकिता, Present, sir. ठीक है। जिनका अटेंडेंस हो गया है, जिसका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, वो जा सकते हैं। अनुज, प्रेजेंट सर। आशीष, प्रेजेंट सर। कहाँ है आशीष? ठीक है, हो गया। तो भाई बाद तो देर में देखते हैं ना। आयुष, प्रेजेंट सर। ठीक है। दीक्षा, Present, sir. ठीक है। देवाशीष, नहीं है, चलो बाद में। हर्ष, यस सर। ठीक है। हिमांशु, Present, sir. ठीक है। ईशा, Present, sir. ठीक है। नमन, प्रेजेंट सर। हाँ नमन, ये क्या लिखे थे? सर ये उस समय जब पढ़ा रहे थे आप। अच्छा, क्योंकि मैं पीपीटी पे रहता हूँ ना, तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाया आज, नहीं तो बीच बीच में चैट बॉक्स देखता था मैं। अच्छा, ठीक है। आकाश की अटेंडेंस हो गई क्या? लगता है बच्ची हुई है। ठीक है बेटा, आप पहली बार या तो पहला लेक्चर है नमन? सर पहला तो नहीं है, दूसरा तीसरा होगा। क्या बात कर रहे हो? अटेंडेंस रोज ली जाती है, जैसे अभी ली जा रही है, क्या? रिकॉर्डिंग भी होगी उसकी।
आप पूछो, वेब जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ मैं, उसमें अटेंडेंस भी होती है। ठीक है, ओके सर। हाँ थोड़ा ध्यान से बात करो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोलो। नेहा, प्रेजेंट सर। ओके। प्रतीक्षा है अभी, चलो बाद में देते। प्रियांशु, प्रेजेंट सर। ठीक है। सीमा, Yes, sir. ठीक है। शिवांगी, शिवांगी है, चलो बाद में अटेंडेंस लेते। आकाश, प्रेजेंट सर। हाँ आकाश, क्या लिखे थे? सर वही सर, बैकस्लैश वाला। हाँ, अच्छा बैकस्लैश वाला, ओके ठीक है। नॉट बैड। अब अभिषेक, अभिषेक है, चलिए बाद में लेते हैं। अब अनुभव, अनुभव नहीं है। दीपक नहीं, चलिए फिर से नाम। दीपक कह रहा था मैं हॉस्पिटल जा रहा था। सर प्रेजेंट हूँ मैं सर, मेरी लगाई नहीं आपने। आपने बोला भी तो अभी। अभिषेक, सर मैंने जोड़ कर। हेलो सर। ठीक ठीक। हाँ कौन? हर्ष बताओ हर्ष। सर दीपक कह रहा था मैं हॉस्पिटल जा रहा था। तो ठीक है, उसका उसको हाथ का वो था ना सर उसका। ठीक है, वो खुद बात कर लेगा। असिस्टेंट हो क्या उसके? नहीं सर, कल ही हाँ है और सर। क्या। हाँ ठीक है कल सर। वही बोल रहा हूँ ना, बच्चा है क्या, वो बात नहीं कर पाएगा मुझसे। नहीं अभी हाँ? नहीं ना सर, अभी नहीं है, उसने बोला तो था ठीक है, बाद में बात कर लेगा। नहीं सर, हाँ? बात नहीं कर रहे, हम बता रहे बस आपको। ठीक, वो बता देगा। ठीक है सर। भैया अपनी अपनी प्रॉब्लम खुद लेके आओ, अपना असिस्टेंट मत भेजा करो। चलिए, कहाँ थे? चलो फिर से मैं अटेंडेंस नाम ले रहा हूँ। जिनका छूट गया, देवाशीष, देवाशीष एब्सेंट। प्रतीक्षा एब्सेंट। शिवांगी एब्सेंट। अनुभव एब्सेंट। दीपक एब्सेंट। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू टू एवरीवन। कौन कौन बच रहा है? हाँ नेहा, कोई क्वेरी? चलिए नो सर, अभी तो नहीं है। ठीक है। कि कौन है? अनुज, क्या नाम है? कौन है? नाम ही दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है।